والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا کل ہم نے نماز کے واجبات کے حوالے سے ذکر کیا تھا. آج نماز کی سنتوں کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ نماز میں کتنی سنتیں ہیں. یاد رکھیے نماز میں 64 سنتیں ہیں. کتنی سنتیں ہیں؟ نماز میں 64 سنتیں ہیں. کل ہم نے 34 واجبات کا ذکر کیا تھا. آج سنتوں کا ذکر کریں گے اور 64 سنتیں ہیں نماز کے دوران جن کا کرنا ضروری ہے اور کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے. سنتیں ادا کیے بغیر نماز کامل نہیں ہوگی بلکہ ناقص رہے گی اور نماز کا ثواب بھی کم ہو جائے گا. سنت کو قصداً ترک کرنا شریعت کی نظر میں یہ بہت برا ہے. سنت کو ہمیشہ ترک کرنے کی عادت ڈالنے والا عتاب کا اور عذاب کا مستحق ہے. لہذا کوشش کیجیے کہ نماز کے دوران جو سنتیں ہیں انہیں بھی ادا کیا جائے. نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. نماز کی ابتدا کے لیے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا تکبیر تحریمہ کے لیے یہ سنت ہے. تکبیر سے پہلے کان تک ہاتھ اٹھا لینا یہ بھی سنت ہے. تکبیر کہتے وقت سر نہ جھکانا بلکہ سیدھا سر رکھنا یہ سنت ہے. ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رخ ہونا یہ سنت ہے. ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑنا یعنی نہ کشادہ کرنا نہ ملی ہوئی رکھنا یہ بھی سنت ہے. عورت کے لیے سنت ہے کہ مونڈوں تک ہاتھ اٹھائے اور وتر میں تکبیر قنوت سے پہلے کان تک دونوں ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے. اسی طرح عیدین میں تکبیرات زائد سے پہلے کان تک دونوں ہاتھوں کا اٹھانا یہ سنت ہے. اسی طرح سے ہر تکبیر میں لفظ اللہ اکبر کا رے کو جزم کرنا یہ بھی سنت ہے. اور ہر تکبیر انتقال کے وقت ایک فعل سے دوسرے فعل کی طرف جاتے ہوئے ابتدا کے ساتھ ہی لفظ اللہ کا الف شروع کرے اور فعل کے ختم کرنے کے ساتھ ہی اکبر کی رے کا اختتام ہو. امام کا بلند آواز سے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، امام کی تکبیرات کی آواز مقتدیوں تک پہنچنا اور اس کو پہنچانے کے لیے مکبر جو کہتے ہیں اسے بھی درمیان میں رکھنا یہ بھی سنت ہے. لہذا تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ نہ لٹکانا اور فوراً ہاتھ باندھ لینا. مرد ناف پر اور عورت سینے پر ہاتھ باندھے یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر ہاتھ ایسے باندھ لینے چاہیے بلکہ اللہ اکبر کہہ کے ایسے ہاتھ چھوڑ دے اور پھر اٹھا کے باندھنا یہ درست نہیں بلکہ اللہ اکبر کہے اور پھر ہاتھوں کو لا کر ناف کے نیچے باندھ دینا یہ سنت ہے. اور قیام میں دونوں پاؤں کے پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا یہ سنت ہے. قیام میں تھوڑی دیر ایک پاؤں پر زور یعنی وزن دینا اور پھر دوسرے پاؤں پر وزن دینا یہ بھی سنت ہے. ثنا، تعوذ، تسمیہ پڑھنا اور ان سب کو آہستہ پڑھنا
दौरान नमाज ये सुन्नत है, पहले सना पढ़े, बाद में तहव्वुज़ और उसके बाद तस्मीया पढ़े। और हर एक का एक के बाद दूसरे को फ़ौरन पढ़ना और ज़्यादा वक्फ़ा न देना ये सुन्नत है। ईदैन की तकबीरें तहरीमा के बाद सना पढ़ना और तकबीरात वाजिबा के बाद यानी चौथी तकबीर के बाद तहव्वुज़ और तस्मीया पढ़ना ये वाजिब है। सूरह फातिहा के बाद उसके इख्तिताम पर आमीन कहना और आहिस्ता आवाज़ में आमीन कहना ये सुन्नत है। पहली रकत के बाद हर रकत के शुरू में तस्मीया पढ़ना, रकू में जाने के लिए अल्लाह अकबर कहना, रकू में कम अज़ कम 3 बार सुबहान रब्बी यल अज़ीम कहना ये सुन्नत। मर्द रकू में घुटनों को हाथ से पकड़े और हाथ की उंगलियां खूब खुली रखें, और इसी तरह से औरत रकू में घुटनों पर सिर्फ हाथ रखे और घुटनों को पकड़े नहीं, और हाथ की उंगलियां कुशादा न करे बल्कि मिली हुई रहें। मर्द रकू में खूब झुके कि इसकी पीठ सीधी बिछ जाए। रकू औरत रकू में सिर्फ इतना झुके कि हाथ घुटनों तक पहुँचे, जैसे हमने उस दिन जिक्र किया था। रकू ऐसा हो कि कमर बिछी हुई हो और ना सर बहुत झुका हुआ हो और ना सर बहुत ऊपर हो, बल्कि बराबर हो, और पानी का प्याला रखा जाए तो वो ठहर जाए, इसे रकू कहते हैं। इसी तरह से औरत रकू में सर पीठ के महाज से ऊंचा रखे, और मर्द रकू में अपनी टांगें मुतलक ना झुकाए बल्कि बिल्कुल सीधी रखे, और औरत रकू में टांगें झुकी हुई रखे, मर्दों की तरह सीधी ना रखे, ये सुन्नत है। उस दिन हमने पढ़ा था कि तलवार की तरह गोल ना कर दे अपनी टांगों को, जब रकू में जाए तो मोड़ के ना रखे बल्कि सीधी टांगें उसकी होनी चाहिए। इसी तरह से इमाम का रकू से खड़े होने के लिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना, बुलंद आवाज़ से मुक्तदी का रकू से खड़े होने के लिए अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द कहना, ये भी सुन्नत। मुनफरिद का रकू से खड़े होने के लिए दोनों का कहना और समी अल्लाहु लिमन हमिदा की हा को साकिन पढ़ना और दाल को खींच कर न पढ़ना, ये सुन्नत। समी अल्लाहु लिमन हमिदा की सीन को रुकू से सर उठाने के साथ और हमीदा की हा जो है और इसको सीधा खड़ा होने के साथ ख़त्म कर देना, ये सुन्नत। इसी तरह रुकू से खड़े हुए वक्त हाथ ना बुलंद ना उठाना और बल्कि लटकाए हुए छोड़ देना रुकू से। इसी तरह से सजदे में जाने के लिए और सजदे से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना, ये सुन्नत है। इसी तरह रकू के बाद कोमा से सजदे में जाते वक़्त ज़मीन पर पहले दोनों घुटने रखना, फिर दोनों हाथ, फिर नाक और फिर पेशानी रखना, ये सुन्नत है। जैसे उसमें सजदे की कैफियत को बयान हुई थी कि 8 चीज़ों पर सजदा किया जाता है, और ज़मीन पर जाते हुए सबसे पहले घुटने, फिर हाथ, फिर इसी तरह से जो है वो नाक और फिर पेशानी। खाते हुए पहले पेशानी उठाएंगे, फिर नाक उठाएंगे, फिर हाथ उठाएंगे, फिर घुटने उठाएंगे। इस तरह से ये सजदा। दोनों सजदों के बाद क़याम यानी खड़ा होने के लिए पहले पेशानी उठाना, फिर नाक उठाना, फिर दोनों हाथों का उठाना, फिर दोनों जो है ना वो घुटनों का उठाना। सजदे में कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहान रब्बी यल आला। सजदे में दोनों पाँव की 10 उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना और किबला रू होना, ये सुन्नत है। इसी तरह से सजदे में दोनों हाथ की उंगलियां मिली हुई और किबला रू होना। और मर्द सजदे में बाजू को करवट से और पेट को रान से जुदा रखे। रान सजदा इतना झुके ना
कि उसके ये हाथ और ये कोनी भी ज़मीन पर लगे और ये जो घुटने हैं ये उसके पेट तक लग जाएं, ये दुरुस्त नहीं। लिहाजा हाथ लगे हों ज़मीन पर और कुनिए और ये हिस्सा जो है ये ज़मीन पर ना लगे और ना घुटने पेट के साथ। सजदे में दोनों हाथ की उंगलियां मिली हों और औरत सिमट कर सजदा करे, यानी बाजों को करवट से, पेट को रान से, रान को पिंडलियों से और पिंडलियों को ज़मीन से मिला दी, यानी औरत इंतहाई पिच कर सजदा करेगी ज़मीन पर। और मर्द पिछेगा नहीं, बल्कि उसने अपने सिर्फ हाथों को ज़मीन पर रखना है, ना इस हिस्से को ज़मीन पर लगने देना है, ना कूनी को ज़मीन पर लगने देना है, ना अपने इन घुटनों को पेट से मिलाना है, बल्कि इसे उठकर सजदा करना है कि इसके ये घुटने ज़मीन पर हो और इसका पेट इसके घुटनों से जुदा हो। यानी लंबे अंदाज में जब होगा, खुल के सजदा होगा, तो फिर आप हाथों के बल सजदा करेंगे, ना कि कूनियों के बल सजदा करेंगे। लिहाजा औरत जो है वो सारे जिस्म के हिस्से को बिछाकर ज़मीन पर सजदा करे। मर्द सजदे में कलैयाँ और कोनियाँ, जिसे हम जिक्र कर रहे हैं बार बार कि मर्द सजदे में कलैयाँ और कोनियाँ ज़मीन पर ना बिछाए, बल्कि हथेली ज़मीन पर रख कर कोनिए ऊपर को उठाकर रखे। औरत सजदे में कलैयाँ और कोनियाँ बिछाए, यानी ज़मीन पर लगाए। दोनों सजदों के दरमियान जलसे में मर्द इस तरह बैठे कि बायां कदम बिछाकर इस पर बैठे और दायां कदम इस तरह खड़ा रखे कि उंगलियां किबला रू। दौरान नमाज बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें किबला रू होना चाहिए, और किबला रू हमारे पाँव की उंगलियां हों, किबला रू हमारे हाथों की उंगलियां हों, किबला रू हम सब हों और सर भी हमारा किबला रू हो। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि किबला रू होना, किबला रू उसी अंदाज में होंगे कि दोनों सजदों के दरमियान जलसे में मर्द इस तरह बैठे कि बायां कदम बिछाकर इस पर बैठे और दायां कदम इस तरह खड़ा रखे कि उंगलियां किबला रू हो जाएं, और औरत जलसे में दोनों पाँव दाएं तरफ निकाल दे और बाएं सुरीन के सहारे ज़मीन पर बैठे। औरत कादा में भी इसी तरह बैठे। दोनों सजदों के बाद क़याम के लिए खड़ा होते वक़्त पंजों के बल घुटनों पर हाथ रख कर खड़े होना, ये सुन्नत। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नमाज को सही तरीके से सीख कर पढ़ने की तौफीक